In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start class 10th Mathematics Science Group, unit number 12. Theorem number 1. Okay, first of all we will read out theorem number 1. The measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc. थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल हेयर। सो सेंट्रल एंगल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सेंट्रल वर्ड सेंटर से निकला है। इसका मतलब है कि यू विल कंस्ट्रक्ट एंगल एट सेंटर पॉइंट। सो दैट इज़ द सर्कल, that is the boundary or circumference. It is having two names, boundary or circumference. That is the center point here. So the angle will construct at center point named as O. So that will be the central angle like this. Now A and B. So angle AOB is the central angle because it lies on the center of the circle. So you can write here angle AOB is the central angle. Central angle. Now we will discuss major arc and minor arc. So first of all you will take that, for example you will again draw here central angle, for example like this, that is O, that is A and B. So that is the small part here. AB, that is the arc. A to B, that curved portion is known as arc. So OB is known as radius and OA is the second radius. So that is the arc. This is the small piece of circle. In other words, you can say that the part which is less than the semicircle, that is known as minor arc. So you can write here minor arc. Now let's see the portion from upside A to B, ऊपर की तरफ से यहाँ पर, that portion is known as major arc. Major arc. क्लियर? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ए से लेके बी तक आर्क यानी सर्कल यानी बाउंड्री का या सर्कमफेरेंस का ये वाला हिस्सा ये माइनर है, ये लेस देन सेमी सर्कल है, इसलिए इसको माइनर आर्क कहेंगे। इससे ऊपर की तरफ जाएं, ए से लेके हम इस तरफ मूव करें बी, ये देखिए ये लार्ज पोर्शन है, दैट इज़ नोन एज मेजर आर्क. इट मीन्स द पोर्शन विच इज़ ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, दैट इज़ नोन एज मेजर आर्क. अब थ्योरम को अंडरस्टैंड करें, थ्योरम क्या कह रहा है। सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos, share my videos with your friends and also click on bell icon so that you have to get new updates about my videos. Now we'll do theorem number 1 of unit number 12. First of all we will learn how we can construct the diagram with the help of given statement. Mark the center point of this circle. Now अभी हम इसको नेम भी देंगे, लेकिन सबसे पहले देखें the measure of a central angle of a minor arc. So it means you have to take minor arc first of all. So you will put scale like this. ठीक हो गया? आप स्केल के साथ 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करेंगे। अपनी मर्जी से थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट डॉट, दैट इज़ सेकेंड डॉट, नेम्ड एज ए एंड सी। बी भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। नाउ दैट इज़ द माइनर आर्क, नाउ दैट इज़ द मेजर आर्क. नाउ द measure of a central angle of a minor arc, it means you will construct central angle on minor arc, so you have to join this, that will be the central angle.
Now you can named as O. O is the center point. AC is the minor arc. ठीक है, समझ आ गई? माइनर आर्क पे सेंट्रल एंगल. अब जो बाकी बचेगी ये ए से लेके ऊपर से सी तक, दैट इज़ द मेजर आर्क. वो कहता है कि यहाँ पे देखें, इस डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, कि माइनर आर्क पे जो सेंट्रल एंगल बनता है वो मेजर पोर्शन, ये मेजर पोर्शन है, उस पे जो एंगल बनेगा उसके डबल 2 वो एंगल्स होंगे, उस पे उसके 2 के इक्वल्स वो होगा. यानी यहाँ पे 2 एंगल्स बने तो 1 सेंट्रल एंगल बनाएगा. ठीक है, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ मेजर आर्क. अब यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आप पॉइंट लेंगे या आप इसका बाइसेक्टर. हम सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करने से पहले हम इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमने ये मेजर आर्क पे जो एंगल बनाना है. ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया बी का. ठीक हो गया. अब बी पे जो एंगल बनेगा मेजर आर्क पर, ठीक है, वो डबल होगा तो वो 1 सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, यानी यहाँ पे सर्कल की जो बाउंड्री पे एंगल बनता है वो सर्कम एंगल कहलाता है. इसका सर्कल का नाम सर्कमफेरेंस भी है और बाउंड्री भी है. ठीक है, तो इस सर्कल की बाउंड्री पर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो सर्कम एंगल कहलाएगा. और सर्कम एंगल्स 2 कॉर्ड्स के दरमियान होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जॉइन बी टू ए, जॉइन बी टू सी. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कॉर्ड ए बी है और सेकंड कॉर्ड बी सी, इसके अंदर का ये जो पोर्शन है ये सर्कम एंगल का होगा. ठीक हो गया. अब अगर मैं सेंटर पॉइंट से बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ इस सर्कम एंगल का, ये ठीक है, इसने सर्कम एंगल को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में. दैट इज़ एंगल 1, दैट इज़ एंगल 2, that is angle 3, and that is angle 4. Now check that there will be construct 2 triangle. First triangle is OAB and second triangle is OBC. मैं थ्योरम को फिर से रिपीट करती हूँ. सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, AC माइनर आर्क है. ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल आपने बनाया AOC माइनर आर्क पे. अब वो कहता है इस डबल होता है यानी 2 टाइम होता है दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है वो 2 टाइम हो तो 1 सेंट्रल एंगल बनता है. ठीक है, यानी 1 सेंट्रल एंगल होता है डबल ऑफ सर्कम एंगल के. ये सर्कम एंगल है. बी इज़ नोन एज अ सर्कम एंगल. वाई इट इज़ नोन एज अ सर्कम एंगल? बिकॉज इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. सो सर्कम एंगल जो है वो 2 कॉर्ड्स के दरमियान बनता है. ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है. सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यही है. नाउ अब ये ट्राइंगल का इनर पोर्शन हो गया 1 and 3, ये इसको हम इंटरनल कहेंगे. ये भी इंटरनल. अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 5 and 6, ये एक्सटर्नल एंगल होंगे. इस सेगमेंट से बाहर जो एंगल होंगे दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल एंगल. 5 and 6 आर एक्सटर्नल एंगल्स. जहाँ पे ये बाइसेक्टर सर्कल को टच करता है उसका मैंने नाम दे दिया डी का. ठीक है, अब डायग्राम बनानी आपको आ चुकी होगी. अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ फर्स्ट पोर्शन ऑफ थ्योरम टेल्स अस अबाउट गिवन. सो द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस विल टेल्स अबाउट गिवन. सो माइनर आर्क, व्हाट इज द नेम ऑफ माइनर आर्क? AC. So AC is an arc of a circle with center O. Now what is the name of central angle? Angle AOC, that is the central angle. Now what is the name of angle which becomes on major arc? Angle ABC is the circum angle because it lies on the boundary of the circle, so that is known as circum angle. Angle ABC is a circum angle. Now to prove, last portion of theorem tells us about proof is double. Double means 2 times that of the angle subtended by the corresponding major arc. मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है वो ABC है, वो 2 टाइम होगा और वो किसके इक्वल होगा? सेंट्रल एंगल के. एंगल AOC इक्वल्स टू डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल ABC. नाउ कंस्ट्रक्शन यानी जिस पॉइंट को आपने प्रूव करना है उसके लिए जो कुछ आपने किया है यू हैव टू राइट इन कंस्ट्रक्शन. So join B with O and produce it
to meet the circle at point D. After constructed the diagram, you have to get angle 1, 3, 4, 2, 5 and 6. These are external angle and the 5 and 6 are internal. 1 and 3 are internal angles, 5 and 6 are external angles because it is lie outside that segment. 5 and 6 external angles and 1, 3, 4 and 2 are internal angles. Internal means inside the figure. So you have to mention here. Now next portion is proof. So let's see. Angle 1, its opposite angle is 3. So angle 1 equals to angle 3. Its reason is angles opposite to equal sides in triangle OAB. ठीक है. Now second, angle 2 equals to angle 4. Same reason. Angles opposite to equal sides in triangle OBC. Clear? Now external angle 5 equals to sum of internal angles. So external angle 5 equals to the sum of internal angles of that side 1 and 3. So measurement angle 5 equals to measurement angle 1 plus angle 3. Reason is same. External angle is the sum of internal opposite angles. So same you will write here. Angle 6. Angle 6 is also the external angle. So angle 6 equals to angle 2 plus angle 4 like this. That is equation number 1, 2, 3 and 4. So you have to get 4 equations. Now यहाँ से अब मैं स्टेप्स आपको सॉल्व करके बताती हूँ. यहाँ पे शॉर्टकट वे में दिए गए हैं. ये स्टेप्स मैं आपको सॉल्व करके यहाँ से समझाती हूँ. Put angle 1 equals to angle 3 in equation number 3. So you have to get here measurement angle 5 equals to measurement angle 3 plus measurement angle 3. आप 1 की जगह angle 3 पुट करेंगे. ठीक है. Now angle 3 written here 2 times. So measurement angle 5 equals to 2 measurement angle 3. That will be equation number 5. Now same as second equation. Angle 2 equals to 4. So you can write here put angle 2 equals to angle 4 in equation number 4. So measurement angle 6 equals to, okay, you have to put angle 4 in place of angle 2. So measurement angle 4 plus measurement angle 4. Angle 4 double time written here. So you have to add. It becomes 2 measurement angle 4. That is the equation number 5. ठीक है. बुक पे शॉर्टकट स्टेप्स दिए गए थे. ये स्टेप्स जो है ना ये मैं आगे सबको यहाँ पे समझा रही हूँ. जब आपको ये समझ आ जाएगी तो बुक वाले आपके लिए इजी हो जाएंगे. नाउ बाय कंपेयरिंग या बाय इक्वेशन, that is equation number 6. So by equation 5 and 6. So या आप कह सकते हैं कि by comparing equation number 5 and 6. ठीक है. जब आप साइड्स को कंपेयर करते हैं तो लेफ़्ट साइड ऐड टू लेफ़्ट एंड राइट साइड ऐड टू राइट साइड. या आप कह लें कि आप बाय एडिंग आप लिख लें, वो ज़्यादा मुनासिब है. बाय एडिंग सिंपल भी है. ठीक है. बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6. सो लेफ्ट हैंड साइड ऐड टू लेफ्ट, राइट हैंड साइड टू ऐड टू राइट साइड. सो एंगल measurement angle 5 plus measurement angle 6 equals to 2 measurement angle 3 plus 2 measurement angle 4. So taking 2 here as a common, then inside measurement angle 3 plus measurement angle 4. Now angle 5 plus angle 6 written as it is. Now अब यहाँ से पॉइंट समझने वाला है. Now check that angle 5 and angle 6 कहाँ पे लाई करते हैं. चेक करें 5 and 6 सेंटर पॉइंट पे, यानी सेंट्रल एंगल AOC. इट मीन्स पुट मेजरमेंट एंगल AOC. 5 और 6 सेंट्रल एंगल हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल AOC. सो 2 एज इट इज़. अब एंगल 3 और 4 कहाँ पर है, B पर, और B क्या है, सर्कम एंगल. सो पुट सर्कम एंगल. व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्कम एंगल, ABC. सर्कम एंगल 2 कॉर्ड्स के दरमियान बनता है. ठीक है. मेजरमेंट एंगल ABC. और देखा जाए तो यही हमने प्रूव करना था कि सेंट्रल एंगल इज़ द डबल ऑफ सर्कम एंगल.
ABC. So Allah Hafiz to all of you. Subscribe my channel, like my videos, share my videos, and also click on bell icon so that you have to get new updates about my videos. So Allah Hafiz.